जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत जाहिर है, ऑब्वियस है, हमारे माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं। जिस तरह उन्होंने हमें सींचा है अपनी चाहतों से, अपने सेक्रीफाइसेस से, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसी शिद्दत से उनका ख्याल रखें। लेकिन जिंदगी की आपाधापी में अपने करियर को बैलेंस करते हुए, फैमिली को देखते हुए कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। छोटी से छोटी जरूरत उनकी हम पूरा करना चाहते हैं उसी शिद्दत से जिससे उन्होंने हमारा ख्याल रखा था। और इसी काम को आसान करने का तरीका हमारे अगले स्टार्टअप के पास है। प्लीज वेलकम मनोज कुमार मैती। Hi, good evening and namaskar. नमस्कार। Yeah, I'm Manoj Maiti from Kolkata. ऐसा कीजिए, let us assume, okay? आपका पास फिलहाल कोई नहीं है, you are in emergency, okay? And आपको पता है, मैंने you are not going to reach out to any other person. तो आप क्या करेंगे? आपका पास एक नंबर है, right? You know there is a number 100. You can call, right? कोई आके थोड़ा बहुत मतलब आगे हो, बाद में हो, आपको रिसीव करेगा. You have that trust. For the women also there is a women helpline number. For the children also you have child helpline number. Now just think of the senior citizens जो अकेला घर में बैठा है. And there is an all-time emergency for them. Is there any dedicated number for them? Can you recall any number, sir? 300, 400? नहीं, एक नंबर नहीं है, बराबर है, नहीं है. रादर मुझे तो याद आ रहा है कि हाईवे तक पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस पे भी नंबर है, मगर माता पिता के लिए नहीं है, कुछ नंबर नहीं है. So here we come, right? We are in the mission of developing one nation, one number for the senior citizens, right? This is the number which is going to rule the entire India. Like, this is a dedicated number for the senior citizen. Okay? So now let us understand, हम लोग को समझना है senior citizen लोगों का problem क्या है. Now we are in such a era कि जहाँ पे it is not possible कि everybody is going to stay with their parents, right? हम लोग वहाँ जा रहे हैं, okay? और वो भी अकेला भी रहना sometimes पसंद करते हैं. Now the point being, there are 5 criticalities they are facing. 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 है. Number 1 is there is no medical response system in India. अगर आप इमरजेंसी की बात करते हो, a senior citizen is locked inside a room, उसका medical emergency होता है, there is no number, there is no one to help, right? Second being, there is no organized health monitoring system available in India. Okay? So senior citizen को वो होता है ना, so there are बहुत सारे like in physical and mental ailments वगैरह बहुत सारे होते हैं. So there needs a regular checkup. आपका आर्ट्स चाहिए, ना चाहिए, आया चाहिए, नर्स चाहिए, और मे भी पैथोलॉजी भी घर में करना है. सो ऑल दीज आर द क्रिटिकलिटी फॉर देम, दीज ऑल आर द इमरजेंसी फॉर देम, राइट. 3 नंबर पे आता है विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल नाउअडेज. आप अगर सीनियर सिटीजन हो एंड आपका पास पैसा है, देन यू आर एक्सपोज टू क्राइम एंड हैजर्ड्स. वो लोगों का मतलब वो नजर में अब हो, राइट. एंड फोर्थ बीइंग, कोरोना का ऊपर में भी उन लोगों का लोनलीनेस इज द बिगेस्ट एपिडेमिक फॉर द सीनियर सिटीजन्स. कोई नहीं है, there is no one to talk to them, right? They can't even share their feelings with them, right? So this is the 4th biggest problem with the senior citizen. Now what is the 5th point? उसको ग्रोसरी चाहिए, उसका पंखा खराब हो गया है, right? वेजिटेबल चाहिए, मेडिसिन चाहिए. These are the 5 things which the senior citizens are facing every day. Now हम लोग क्या कर रहे हैं? We are offering these solution, means ये होता है ना एक नंबर, मुश्किल आसान वाला नंबर, राइट. यू जस्ट कॉल अप आवर नंबर. इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर एनी एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन का जरूरत है ही नहीं. यू जस्ट कॉल अप दिस नंबर एंड वी आर रेडी विथ ऑल दीज सर्विसेज, व्हाटएवर 5 points I have explained. India is having 110 million senior citizens having their disconnected and vulnerable life, right? Out of that 43% means 5 करोड़ लोगों को immediate सर्विस चाहिए. Why? Because they are absolutely alone. And आप एक गूगल कीजिएगा, India is the fastest aging country in the world. Our senior citizen population is growing at a rate of 190%. Means by 2050, our total senior citizen population will be 34 crore, which is cumulatively more than the total population of the USA. And now currently it's a $10 billion market in India. Our traction as of now, 1,500 mobile application has already been downloaded. In last 3 months, approximately 400 unique senior citizens have taken our services. And every day we are getting almost 15 to 20 IVR calls, जो हम लोगों को national helpline number जो मैं शायद you can see it over there. Our business model is very simple. आपको pay per convenience model है and membership है. क्या रेस कर रहे हैं और कितनी वैल्यूएशन में?
So we are actually looking for fourth year at maximum 25%. अभी प्लेटफॉर्म में आपका सबसे पॉपुलर सर्विस क्या रहा है? सबसे पॉपुलर सर्विस ये है आउटडोर कंपेनियन, एक हो गया, मतलब वो जो वैक्सीनेशन वगैरह है, वो घर में अकेला है, उसका सर्विस चाहिए। अच्छा। उसका बाद है आपका पैथोलॉजी है, और उसका बाद है आया सर्विसेज। मुझे लगता है मनोज अब पूछ लेते हैं अपने हॉर्सेस से क्या वो इंटरेस्टेड हैं इस डील में, आपकी पिच में या नहीं। तो मंदार, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। नहीं, क्योंकि मुझे कुछ यूनिक नहीं दिखा, बहुत सारा क्राउडेड है, स्केल अप होने में प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन की मुझे बात भी नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा है मतलब। अंकिता, या वेरी सिमिलर फीडबैक। अभी इसमें थोड़ा डिफरेंशिएटर मुझे मिसिंग लग रहा है। ऑल्सो आई विश कि वो जो आपका मोबाइल ऐप था ना, आप एक्चुअली बनाते फॉर ओल्ड एज पीपल, सो दैट इज वन थिंग। और ऑल्सो आपने सब्सक्रिप्शन अभी लॉन्च किया है, तो मे बी जब आप थोड़ा वो उसमें नंबर्स आ जाएं, आप फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं। Difference, like there are so many things, but could not speak or could not say. I have a similar feedback too. आपके challenges दो बहुत बड़े हैं because we are working with 2 more startups in the same cohort. वो सेम चीज़ कर रहे हैं एंड पीपल चैलेंजेस बहुत है। लाइक मंदार ने कहा, एनीवेज इंडिया में शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स है इन दिस सेगमेंट, तो पीपल चैलेंजेस बहुत है। प्राइसिंग चैलेंजेस भी बहुत है। आपके 1500-2000 से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, देन एज एंड व्हेन यू टेक सर्विसेज तो और दीज मंथली प्राइसेस आर क्वाइट हाई फॉर द नॉर्मल सीनियर सिटीजन जो अकेले हैं, और दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट, देन दे हैव देयर ओन केयरटेकर्स। सो आई हैव सीन दैट हैपनिंग। सो मेरे तरफ से फॉर दिस इज अ नो। ठीक है, दीक्षा। अगेन आई थिंक सिमिलर फीडबैक। स्केलेबिलिटी के बहुत इश्यूज होंगे। एक सिटी में स्केल कर सकते हैं, गोइंग टू अनदर सिटी विल ऑलवेज बी अ चैलेंज। आई एम फ्रॉम पुणे, वहाँ पर ऐसे 3-4 स्टार्टअप्स को मैं मेंटर करती हूँ, बट फॉर देम ऑल्सो टू गो टू अनदर सिटी इज टफ, सो इट्स अ नो फ्रॉम मी। Okay, thank you. It's too early for me. You have to get a lot more traction, a lot more revenue, prove the model in Calcutta, and then come to. I mean, as an investor, it's way too early for me. ठीक है। Okay. तो हमारे हॉर्सेस ने तो ना कहा है फिलहाल के लिए। वो कई चीजें हैं जिसके लिए वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, कई चीजें हैं जिसमें उनको लग रहा है कि उनको अगर समझ नहीं आ रहा है। बड़े क्लियर हैं हमारे हॉर्सेस, वो सीधा सीधा बताते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें नहीं आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बिंद्रा का आपकी पूरी पिच पे क्या एनालिसिस है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका एक कंक्लूडिंग रिमार्क उनसे ले लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद मनोज माइती जी। मुझे मुश्किल लग रहा था इस स्टेज में कि कोई हॉर्सेस हमारे एक्चुअली पार्टनर करें। मैं थोड़ा क्विकली आपको कुछ सुझाव भी दूंगा, कुछ एनालिसिस दे देता हूं आपको। ये जो मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम नहीं है, उसके लिए आपने किया, अच्छा है। हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्डअप करना चाहते हैं, मैं समझ पाया। आप उनको उनकी सेफ्टी पे काम कर रहे हैं, लोनलीनेस, मेंटल इलनेस पे काम कर रहे हैं। आप उनको वेजिटेबल, ग्रोसरीज, हाउस होल्ड रिपेयरिंग, ये सब चीजें देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। तो आपका पर्पस बहुत अच्छा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 11 करोड़ इस समय सीनियर सिटीजन्स हैं, ये बात सही है। इस समय 2031 तक ये नंबर बढ़ेगा। आई थिंक ये आपने अपनी बात में कवर भी किया आपने। पर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखते हुए और करंट बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है आपको थोड़ा फोकस चाहिए इस समय। जैसे मैंने आपको पोर्टिया, इमोहा, अर्बन कंपनी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का आप एक मिक्सचर सा लग रहे थे मुझको भी। ये ट्रस्ट का बिजनेस है, इसमें लीगल लाइबिलिटीज भी आएंगी आपके लिए, तो इसलिए लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर वेरी स्मॉल कम्युनिटी में चैलेंज क्या आ रहा है, स्प्रेडिंग टू थिन टू फार। इसमें क्या बिग बास्केट भी आप बनना चाह रहे हैं। अब मैं इसमें एक बात बताता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल कल्चर भी हमारे देश का, कि चाइल्ड इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट, तो टर्म्स आपको और रिड्यूस हो जाता है उससे। पोस्ट कोविड इसकी जरूरत बड़ी है, सर्टेनली बड़ी है, और इसको आपको डाइवर्सिफाई करने की जगह नई जगहों पे 500 से 1000 सब्सक्राइबर्स पे तुरंत जाइए और 3 महीने उनको इवैल्यूएट करिए। मुझे लगता है कि पोर्टिया, ट्रिबेका, ये आप ही की इंडस्ट्री में रहे हैं, आपके जैसा काम किया, बहुत पैसा रेज किया है, अब रेवेन्यू किया है, तो वो रेवेन्यू थोड़ा सा आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ केपीआई डिजाइन कर लीजिए। यूजर एक्विजिशन मंथ ऑन मंथ, आपको इन्वेस्टर इंटरेस्ट देंगे आपको। आप डोंट डू एवरीथिंग, एक बिजनेस मोड बना लीजिए। फिर से याद दिलाऊंगा आपको, हार नहीं मानिएगा मनोज जी, क्योंकि आपका इस समय पर्पस बहुत स्ट्रांग है और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। और जो शुरुआत आपने करी थी कि ऐसा कोई टोल फ्री नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, किसी का याद आता है, मुझे भी किसी का याद नहीं आता, तो इस डायरेक्शन को मत छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो मनोज, आपको बहुत गाइडेंस मिली है। डॉक्टर बिंद्रा ने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है कि कहाँ चीजें हैं जो प्लग करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, अपना पिच
हमारे हॉर्सेस के सामने रखने के लिए। उम्मीद है एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा मैथीज पॉजिटिव लिविंग। One thing before he leaves, since I am from Calcutta, I would like to invite you हमारे वेंचर बिल्डिंग प्रोग्राम में। यहाँ भले ही आपकी इन्वेस्टमेंट ना हुई हो, बट आई कैन इंटीग्रेट यू विद 2 more स्टार्टअप्स इन द सेम स्पेस। एक है जो असिस्टेंस करते हैं वाया ट्रांसपोर्टेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स, एक है जो हाइब्रिड प्रोग्राम है असिस्टेंस एंड ओल्ड एज होम। सो शायद आप कोलैबोरेट कर सके, मे बी इट गिव्स यू मोर ट्रैक्शन। सो प्लीज जरूर यू कैन टेक एज मच हेल्प इन दैट इफ यू वांट, एंड वी आर राइट देयर इन द सेम सिटी, सो यू आर ओपन टू कम व्हेनेवर यू लाइक। मनोज के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू थैंक यू सूरज, क्योंकि ऐसा खूबसूरत पल इसी शो पे आ सकता है हॉर्सेस टेबल पे कि आपको डील बेशक ना मिली हो लेकिन डील मिल जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप दोनों को। थैंक यू सो मच मनोज। थैंक यू। खोल के सपने देखो और फिर जी जान लगा दो उन सपनों को पूरा करने के लिए। यही सिखाता है हमारा ये शो हॉर्सेस टेबल। अगली बार होगी फिर मुलाकात नए स्टार्टअप्स के साथ, ओनली ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू।